So, friends, we are starting a new lecture. This is the first subject of foundation course, accounting, and we are starting with the theoretical framework. Under theoretical framework, meaning and scope of accounting. Scope of accounting, basically. Meaning and scope of accounting. So, we learn what is the meaning of accounting and what is the scope of accounting. So, accounting starts with the economic activity. So, every individual or maybe the organization at some point of time in their day-to-day life or for the organization, they're dealing with the customers and dealing with their traders in the market. Everywhere, individual as well as organization perform some kind of economic activity. Some kind of economic activity is being performed. So these economic activities are performed through two things, basically the transactions and the events. So transactions takes place when suppose a businessman buys goods, maybe the selling the goods, any transactions which involve money. So here we are taking the example of the business deal. Suppose we are entering into this business deal, performance of an act basically or an agreement. So if you have entered into any agreement with anyone and some money is involved in that, so obviously it's a transactions. Event on the other hand is the resultant things basically. This is happening or a consequence of a transactions basically. So suppose a trader has started a business, he bought some material, then he sold that material taking the additional profit. So that would be the resultant would be the gain. So for doing the trading business, he might have entered the other expenses also. Like he might have paid the salary cost with the rates and taxes, other 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 things also, other costs also. So the remainder between the sales and the cost would be the event basically. So two things involve the economic activities. First is the transaction and second is one is the event. So what is accounting? So first we are taking the example, taking the definitions given by say AICPA. It's American Institute of Certified Public Accountant. So they define the accounting as the recording. First is the recording, then classifying, and summarizing in a significant manner, basically. Significant manner. So first recording is there, second classifying that recording, basically, and third one is the summarizing in a significant manner. Significant manner means there are certain rules, there are certain principles given for accounting in terms of money. So money is required. Money is required. तो ऐसा नहीं कि मतलब जैसे he supports me well, he is my friend, उसने मेरा अच्छा सपोर्ट किया तो उसमें there is no money term basically. So that is not a transaction. So all transactions will have the money terms. Transactions and events in a part of at least financial character and interpreting the result thereof. Basically the definitions. So first recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money or what we are recording, transactions and events. Second definition, process of same, the identifying, measuring and communicating the economic information. Basically, it is one more step ahead of the above definition. It is saying it is identifying, measuring and communicating the economic information. Economic information, how we are capturing the economic information through transactions basically. To permit informed judgment and decisions by the users of the accounts basically. So it is saying we have to communicate the economic information. Economic information means what? It would be the balance sheet, profit and loss account, whatever, to the users of the accounts, basically, who are the interested parties. It will be given, basically. So accounting acts as a language of the business. It's a language of the business because उसी से हमको पता चलता है कि हम लोग प्रॉफिट में हैं, हम लोग लॉस में हैं,
हमारा बिजनेस क्या जा रहा है, हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. So it's a language of the business. Then the process of accounting. So generating the financial information basically. So how we are generating the financial information. So first the recording of the transaction. So what happens when transaction takes place? First we are going to record that transaction. So that is called journal. That is called journal. It's a basic accounting thing from which दी अकाउंटिंग स्टार्ट्स बेसिकली. अगर यहाँ ही हमारा गलती हो गया, सपोज हमने जर्नल में ही कोई गलती कर दिया, तो हमारा पूरा अकाउंटिंग क्या हो जाएगा, टॉस पे चला जाएगा. इसलिए जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट. So recording of the journal is very important, though it is very prime entry, but it's very important to have a good, clear and mistake, say without any mistake, the financial statement. Right? Then once we recorded the journal, then classifying it, we have to classify it in a groups basically. So suppose we have paid the salaries every month. We are paying salaries every month. सैलरी हम हर महीने देते हैं. तो अभी 12 महीने का सैलरी मुझे जानना है अगर, तो क्या करूंगा, मैंने जो जो 12 महीने ट्रांजेक्शन्स की एंट्री पास की है, सैलरी पेमेंट इट्स अ ट्रांजेक्शन, उसका जो मैंने एंट्री पास किया उसको क्या करूंगा, मैं ग्रुप कर दूंगा. सो दैट विल बी कॉल्ड अ क्लासिफाइंग बेसिकली. सो क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप कर दिया. देन समराइजिंग. अब क्या किया मैंने, वैसे जैसे मैंने सैलरी का आपको एग्जांपल बताया, तो सैलरी एक कॉस्ट हो गई. वैसे मेरा परचेस को मैं समराइज करूंगा, सेल्स को समराइज करूंगा, और भी मेरे अदर कॉस्ट है उसको समराइज करूंगा, मेरे एसेट्स लाइबिलिटीज वट एवर, आई विल समराइज ऑल दोस. एंड आई विल फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है मुझे, और मेरा बैलेंस शीट कैसा बन रहा है. बैलेंस शीट इज अ शीट ऑफ बैलेंसेस. तो ट्रायल बैलेंस में इट्स अ balances basically. Trial balance shows the balances. Profit and loss shows the profit and loss account, and balance sheet shows the position of the company basically, where the company stands on a particular day. Analyzing. So once we're done with the trial balance, profit and loss account, then we are going with the analyzing the things. So methodical classification of data to establish the relationship basically. So what we are doing, analyzing the things. So we are having, say, profit and loss account, balance sheet of the current period, and we are having the profit and loss account, balance sheet of the past period. So we have to analyze that. So it is a methodical classification. So data to establish a relationship basically. So say suppose we are having the data of the salary of the current year, 12 months, and we have the data of the salary of the last year basically. So we can establish a relationship. His salary is getting increased because we have given the increments to the employees. Then interpreting, explaining the significance of the data to judge the profitability and the financial position basically. So by analyzing, we are interpreting basically where our business is going. हम उसको interpretation करते हैं कि भाई हमारा business कहाँ जा रहा है, profit में जा रहा है, loss में जा रहा है, कहाँ जा रहा है. And last में communicating. So we have done with all these things: recording, classifying, summarize, analyzing everything. We are saying yes, the data is perfect, the financial information is perfect. So now it is ready for communicating. सो इट विल बी कम्युनिकेटेड टू दी एंड यूजर. जो उसके एंड यूजर होगा उसको हम लोग कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है, तो उसमें जो कम्युनिकेट करेंगे दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ विल प्रेजेंट द रेशियोज आल्सो, विल प्रेजेंट सम अदर थिंग्स आल्सो, सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड बाय द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो विल अंडरस्टैंड. अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हुआ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि क्या है अकाउंटिंग का प्रोसेस. तो अकाउंटिंग का प्रोसेस सिंपल है. पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजेक्शन को, जर्नल हो गया. उसके बाद में उस जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया उसको हमने ग्रुप क्लासिफाई कर दिया. सो इट इज अ लेजर. देन विल समराइज द थिंग्स. देन इट विल बिकम ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. वो बन गया. फिर वो बनने के बाद में हम लोग उसको एनालाइज करेंगे कि उसका डेटा इज करेक्ट और नॉट, करेक्ट पिक्चर आ रहा है कि नहीं. वी विल कंपेयर इट विद द पास्ट पीरियड ऑल्सो. ठीक है. सो इट्स एनालाइसिस बेसिकली. कोई अगर नंबर मेरा ज्यादा बढ़ के आ रहा है, जैसे लास्ट मंथ मेरा कोई कोई कॉस्ट है, इस मंथ से बढ़ के आ रहा है, तो आई विल एनालाइज दैट एंड आई विल फाइंड आउट द मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली. देन इंटरप्रेटिंग, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेटा टू जज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंडीशन. उसको इंटरप्रेट करेंगे हम, और इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द एंड यूजर. इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, कैसे अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ. सो इट्स रूट इज 400
BC बोलते हैं. So again the double entry. So double entry book system evolved from 1494. Double entry book system is every debit will have the corresponding credit. So there are two effects of any transactions. Basically it is called a double entry bookkeeping. एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे हमेशा. सो इट्स डबल एंट्री बुक कीपिंग जो अभी हम लोग फॉलो करते हैं. वी आर नॉट फॉलोइंग द सिंगल एंट्री बुक कीपिंग नाउ. स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग कोई बड़े बड़े जो होते थे, मतलब पहले राजा महाराज जो भी है बड़े बिजनेसमैन होते थे, दे आर कीपिंग सम अकाउंटेंट्स टू मैनेज देयर बुक्स, बेसिकली फाइनेंशियल बुक्स बेसिकली. देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब स्टार्ट हुआ? वो बोलता है जब जॉइंट स्टॉक कंपनी एग्जिस्टेंस में आए. जब जॉइंट स्टॉक कंपनी एग्जिस्टेंस में आए टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर इंटरेस्ट. क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैसा, इट्स अ जॉइंट स्टॉक, तो इसमें कैसा है, पैसा सबका लगा हुआ है, पब्लिक का लगा हुआ है. तो उसका जब सेफ गार्ड करना है, हमको इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है, तो हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलो करना है. सो इट विल हैव सम प्रिंसिपल विच विल फॉलोड इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन. बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट्स इंटरनल अकाउंटिंग. बेसिकली मैनेजमेंट को चाहिए कि भाई ये तो मेरा अकाउंटिंग हो रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रहा है, इट इज ओके, बट आई अगेन वांट द मैनेजमेंट अकाउंट्स. सो मैनेजमेंट अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट बोलता है कि मुझे देखना है कि मुझे एक महीने में मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे बताओ. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ऐसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट करके कोई चीज है नहीं, बराबर. वो तो आपको रिपोर्ट करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाना है, एज पर अकाउंटिंग रूल्स बनाना है, बराबर. लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है, मैनेजमेंट बोलती नहीं, मुझे जानना है कि मेरा ईबिटा कितना है, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ठीक है, मेरा एफिशिएंसी कितना है. तो वो सब के लिए विल हैव द अदर अकाउंटिंग. बेसिकली वो इंटरनल अकाउंटिंग होता है. इट इज नॉट फॉर द पब्लिक बट इट इज फॉर द इंटरनल पर्पस. देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सो कंपनीज आर हैविंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर आल्सो, सो डूइंग द अकाउंटिंग फॉर दैट. कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन. अभी अकाउंटिंग कैसा होना चाहिए, सी उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. अकाउंटिंग में सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड वेरी सिस्टमैटिकली. ट्रांजेक्शन एकदम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होना चाहिए. एसरटेनमेंट ऑफ द रिजल्ट. बेसिकली अभी क्या करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या अकाउंट बनाने का. भाई मेरा अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई मुझे अकाउंट इसलिए बनाना है कि मुझे जानना है कि मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है. सो एसरटेनमेंट ऑफ द रिजल्ट्स बेसिकली, रिजल्ट में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने कितना माल सेल किया. अब रिजल्ट मुझे देखना है, तो रिजल्ट वुड बी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. जैसे आप लोग ने 11th पास किया, तो 11th क्या था, एक साल का पीरियड था, तो एक साल में आपका क्या रिजल्ट आया. वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बनाया, तो इट वुड बी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. फिर वो एक साल भी हो सकता है, मैंने एक साल में कितना कमाया, मैंने 3 महीने में कितना कमाया, मैंने 6 महीने में कितना, मैंने 9 मंथ्स में कितना कमाया. सो एसरटेनमेंट ऑफ द रिजल्ट्स बेसिकली, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, उसका एक ऑब्जेक्टिव. देन सेकंड ऑब्जेक्टिव एसरटेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन. अभी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, अभी आप एक चीज मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे. अगर हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देखिए ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जब हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलेंगे ना, तो उसका मतलब क्या होता है मालूम है. उसमें आ जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाता है, उसके जो भी कैश फ्लो आ जाता है आपका, उससे आपके जितने भी नोट्स है सब आ जाता है. सो दीज आर कॉल्ड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अगर फाइनेंशियल पोजीशन कोई बोलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन बेसिकली फाइनेंशियल, तो इट इज अ बैलेंस शीट. क्या उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंस शीट बोलेंगे. ये चीज याद रखना हमेशा. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि पूरा जो हम लोग फाइनेंशियल प्रेजेंट करते हैं वो. सो फाइनेंशियल पोजीशंस आर नथिंग बट दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज. बेसिकली इट्स अ बैलेंस शीट. तो अभी जैसे हमने देखा रिजल्ट हमारा कैसे आता है, एक साल का आता है, 6 महीने का आता है, 2 महीने का आता है, 1 महीने का आता है. इट इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, ओके. एंड फाइनेंशियल पोजीशन इज ऑन अ पर्टिकुलर डेट. इसलिए हम लोग बैलेंस शीट पे लिखते हैं ना, बैलेंस शीट एज एट, इट इज ऑन दैट पर्टिकुलर डे. तो अगर नेक्स्ट डे कुछ चेंज हो गया, तो माय फाइनेंशियल पोजीशन विल गेट चेंज. बट रिजल्ट क्या होता है, इट इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. उस पीरियड में मैंने कितना कमाया. देन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स. बेसिकली स्टेक होल्डर्स मतलब जो मेरे इंटरेस्टेड पार्टीज है, फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग. वी आर प्रोवाइड, हमको क्या करना है, वो इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करना है, जो यूजर्स है. बेसिकली यूजर्स है, वो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब बना के हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है टू द यूजर्स. देन नोइंग द सॉल्वेंसी पोजीशन. हम लोग सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट है, भाई हमारा बिजनेस चल रहा है,
ठीक है। हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, क्या हम लोग उसको पे कर पा रहे हैं, पे कर पाएंगे कि नहीं इन इन नियर फ्यूचर। ठीक है। मेरा बिजनेस में गोइंग कंसर्न एजम्पशन है कि नहीं, ये मेरे पास जो सेल्स मेरी हो रही है, ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ आ गई और 6 महीने बाद ये बंद होने वाली है। सो आई विल ऑल्सो नो द सॉल्वेंसी पोजिशंस। तो ये सब उसके ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग करने का। रिकॉर्डिंग किया ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड किया, बेसिक थिंग्स, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन किया। अब मैंने उसको स्टेक होल्डर्स मतलब यूजर्स को दे दिया कि आप देखो इसको, मैनेजमेंट कैन बी दी वन ऑफ द यूजर, उस पे बेसिस पे डिसीजन लेगी। देन नोइंग द सॉल्वेंसी पोजीशन, मेरी पोजीशन क्या है, आज मैं सॉल्वेंट हूँ या इंसॉल्वेंट, या फिर 6 महीने बाद में इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा मैं। ठीक है। ये सब दिस आर दी कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। Now we are discussing the difference between the bookkeeping and accounting. So bookkeeping, as the name indicates, जो नाम बता रहा है जैसे कि bookkeeping is a basic term, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है ना, पहले bookkeeping में रिकॉर्ड होता है। ठीक है। So it's a process concerned with the recording of the transaction. Accounting में what we are doing, summarizing the recorded transactions, we are summarizing that. So bookkeeping is a day to day activity. मुझे डेली कुछ मैं सेल कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट एवरी टाइम। बट अकाउंटिंग में क्या करूंगा, समराइज मुझे करना है। सो इट विल नॉट बी अ डेली एक्टिविटी, इट कैन बी, इट मे बी डेली एक्टिविटी, बट नॉट जनरली इट्स अ डेली एक्टिविटी। ठीक है। कंस्टिट्यूट्स द बेस ऑफ अकाउंटिंग। सो एज आई टोल्ड, मैंने जैसे बताया था, ट्रांजेक्शन जो जर्नल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ बेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने अकाउंटिंग ही गलत कर दिया, जनरल एंट्री गलत पास कर दिया, तो उसका पहले जो आगे उसका समरी होगा और जो फाइनेंशियल्स बनेगा, दैट विल गो रॉन्ग। सो बेसिक थिंग, जर्नल एंट्री शुड बी करेक्टली रिकॉर्डेड। देन कंसीडर द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, इट्स अ कंसीडर द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, का लैंग्वेज है बेसिकली। क्या बताता है लैंग्वेज से, वो बताता है कि भाई मेरा बिजनेस कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट क्या है, वो इससे मालूम पड़ता है। ठीक है। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ये अकाउंटिंग का बेस क्या है, बुक कीपिंग है। डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोसेस पार्ट ही नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस बेस्ड ऑन द बुक्स कीपिंग रिकॉर्ड। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किससे बनते हैं, जो बुक कीपिंग में जो रिकॉर्ड्स हमने डाले हुए। सो प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस एंड बेस्ड ऑन द बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। एंड डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग एक सिंगल ट्रांजेक्शन या बंच ऑफ ट्रांजेक्शन से मैं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। अगर 10 ट्रांजेक्शन मैंने इंटर किए दिन में, उसे क्या डिसीजन लूंगा मैं, आई कैनॉट टेक एनी डिसीजन, बट मैनेजमेंट टेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन दीज रिकॉर्ड्स। Financial positions cannot be ascertained, but we can ascertain the financial positions through the accounting records. So ये उसका डिफरेंस है। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अभी अकाउंटिंग के सब फील्ड क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या करना है हमको, इट इज फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स, बेसिकली इट इज फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स। वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब आ गया, लाइक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। देखो अब, इट्स अ हिस्टोरिकल नेचर, अकाउंटिंग जो होती है ना, इट्स अ हिस्टोरिकल इन नेचर। जैसे मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी से मैंने कोई मशीनरी बाय किया 5 साल पहले, मैंने बाय किया 10 लाख रुपए में। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको वो रिकॉर्ड करता हूँ मेरे एसेट्स में 10 लाख, और उसको डेप्रिसिएट करता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। आज वो मेरा मशीनरी का कॉस्ट, अगर मैं 2 या 3 साल बाद मार्केट में लेने जाऊं, तो 5 लाख का नहीं होगा, वो 3 लाख में मुझे मिल जाएगा। तो सी उसका जो actual cost है, so market value is going down, it is not that 5 lakhs rupees। तो भी मैं क्या करता हूँ, मेरे बुक्स में 5 लाख रुपए दिखा के रखता हूँ और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहता हूँ, बिकॉज इट्स अ हिस्टोरिकल इन नेचर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट्स अ इंटरनल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से इट्स हिस्टोरिकल इन नेचर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। तो ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए हमने देखे रखा है। तो इसमें क्या है ना, बहुत से रेगुलेशन है, इसमें बहुत से अथॉरिटीज है, लाइक कंपनीज एक्ट है, सेबी है। वो डिफाइन करता है कि भाई तुमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे करना है। ठीक है। आपको कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, आपको कौन से अकाउंटिंग जो फॉर्मेट्स है जो फाइनेंशियल्स के, वो यूज करने हैं, उसमें नोट्स कैसे है, तुमको ट्रीटमेंट कैसे देना है, तुमने को टैक्स का प्रोविजन कैसे करना है। सो इट इज टोटली ड्रिवन बाय द एक्ट्स, बेसिकली इट इज टोटली ड्रिवन बाय द एक्ट्स, एक्सटर्नल सोर्सेस। भाई तुमको इस तरीके से फाइनेंशियल बनाना है, सो दैट जो एक्सटर्नल यूजर है उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझ सके। सो इट इज टोटली the it is driven by the acts, maybe the company act,
कंपनीज एक्ट, सेबी के रेगुलेशंस होते हैं कैसे आपको करना है। So this accounting is generally regulated by the external things like ICAI बोलता है, ICAI is giving the accounting standards, वो स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको इंटरनेशनल प्रेजेंट करना है देन यू हैव टू फॉलो IFRS, ठीक है। तो ये सब रूल फॉलो करके यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ इंटरनल रिपोर्टिंग फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग मुझे लेना है, मान लो अब मुझे डिसीजन लेना है कि भाई मेरे को अगर एक नया प्लांट लगाना है तो उसमें मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी, तो मैं अपना डिसीजन खुद कर लूंगा, क्या देखूंगा उसकी मेरे को सबसे पहले तो कैपिटल कॉस्ट कितनी है, कैपिटल कॉस्ट इतनी है, उसमें फिर मुझे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। सो देयर आर वेरियस डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स other, or I will take the financial information also as a base for making the decisions, but I will modify it suitably। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं ले सकता हूँ डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन मैं उसको मेरे हिसाब से मॉडिफाई करूंगा, क्योंकि इट इज टोटली बेस्ड ऑन दी एक्ट्स एंड अदर थिंग्स बेसिकली। और मेरा जो बिजनेस है मुझे पता है, आई नो माई बिजनेस। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस। And cost accounting, as the name indicate, is the ascertainment and controlling the cost। अब मुझे सपोज प्राइसिंग करना है, मेरा कोई प्रोडक्ट है उसको मार्केट में प्राइसिंग करना है, तो मुझे मेरी कॉस्ट तो पता होनी चाहिए, मेरी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो मेरी कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की, ठीक है। और मैंने जो उस पर कुछ सर्विसेज पे कर रहा हूँ तो उस सर्विसेज की कॉस्ट कितनी है, जो भी है, या सर्विसेज की और प्रोडक्ट की कॉस्ट मुझे जानने के लिए आई एम डूइंग दी कॉस्ट अकाउंटिंग। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर दी सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट के लिए हम लोग इसमें अकाउंटिंग करते हैं। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, बेसिकली हम लोग एनवायरमेंटल बेनिफिट के लिए अकाउंटिंग करते हैं कि जानने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, क्वांटिफाइंग इन्वेस्टमेंट मेड इन दी ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमने कितने मैन पावर डिप्लॉय एम्प्लॉय करके रखे हैं, ठीक है, उसकी क्या कॉस्ट है, क्या लेवल पे क्या कॉस्ट आ रही है, उसमें इंक्रीमेंट की कितनी कॉस्ट है, ठीक है। और और भी वेरियस प्लांट के जो एकदम शॉप फ्लोर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कितनी कॉस्ट है, वाइट वाइट कलर जॉब कर रहे हैं उनकी कितनी कॉस्ट है। सो दीज आर द थिंग्स वी आर डूइंग इन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। नाउ द यूजर्स, बेसिकली सो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। देखिए, इंटरनल यूजर्स में तो मैनेजमेंट ही है, मैं ओनर हूँ, मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप का ओनर हूँ, फर्म का ओनर हूँ। सो आई विल सी दी फाइनेंशियल्स, मेरे लिए बनाओ भाई फाइनेंशियल्स, क्या बनाया तुमने। आई एम इंटरनल यूजर्स, मैं यूज करूंगा, बेस्ड ऑन दैट आई विल मेक अ डिसीजंस, आई विल डू एनालिटिक्स इन दैट, आई विल use it for the further operations basically। So require detailed analytics and reports for operational decisions basically। मैनेजमेंट क्यों करती है इसको, ऑपरेशंस डिसीजन के लिए। सो इंटरनल यूजर्स आर द मैनेजमेंट एंड ओनर्स। देन एक्सटर्नल यूजर्स, इन्वेस्टर्स। अब मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा के रखा है, तो मुझे जानना है कि 3 महीने बाद उस कंपनी का पोजीशन क्या हुआ। एज पर सेबी दे हैव टू प्रेजेंट देयर लिमिटेड ऑडिट रिपोर्ट। व्हेन दे आर प्रेजेंटिंग, मैं देखता हूँ कि भाई क्या है मेरा इन्वेस्टर, आई एम इन्वेस्टर, सो आई एम वाचिंग कि भाई क्या हो गया। तो फॉर इन्वेस्टर्स पर्पस क्या करती है कंपनी, एवरी 3 मंथ्स, लिस्टेड कंपनी क्या करती है, एवरी 3 मंथ्स उसके फाइनेंशियल्स पब्लिश करती है। तो एक्सटर्नल यूजर कौन हो गया, इन्वेस्टर हो गया, हु इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। सो आई एम एक्सेसिंग वेदर आई हैव टू सेल दैट शेयर्स, उसका अगर परफॉर्मेंस इज नॉट करेक्ट देन आई विल गोइंग टू सेल दैट शेयर। अगेन आई विल सी कि नहीं मेरे को और बाय करना है कि मुझे होल्ड करना है। देन एम्प्लॉइज, ऐसे स्टेबिलिटी। अभी मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, किसी कंपनी में, आई एम एट अ वेरी हायर पोजीशन, बट आई एम नॉट अ फाइनेंस गाय। मुझे भी जानना है कि भाई ये कंपनी में स्टेबिलिटी है या नहीं है, ये ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट आते आते ये कंपनी दिवालिया हो जाए, ठीक है। सो एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है, ये सब जानने के लिए सो एम्प्लॉयज आर लेंडर्स बेसिकली। सपोज अभी किसी बैंक ने किसी को लोन दे के रखा है, अभी लोन तो दे दिया, अभी क्या चल रहा है कंपनी में उसको देखना तो है। अभी पैसा तो दे दिया, पैसा कहाँ लग रहा है, उसका फायदा हो रहा है कि नहीं, ये मेरा ईएमआई पे कर पाएगा कि नहीं, 6 महीने तक पे कर पाएगा कि 1 साल तक कर पाएगा कि कर ही नहीं पाएगा। तो मुझे भी जानना है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो लेंडर्स इज रिक्वायर्ड। देन सप्लायर एंड क्रेडिटर। अभी सप्लायर जो होते हैं उन्होंने माल सप्लाई कर दिया है,
माल तो सप्लाई कर दिया, अभी क्रेडिट पे सप्लाई किया है, अभी पैसा उनको लेना है। 45 डेज का टर्म है, कहीं क्रेडिट पीरियड 45 डेज का है, कहीं 30 डेज का है। तो आफ्टर 30 डेज उसको पैसा चाहिए, बट दैट्स वाई ही हैज टू सी दी क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, ही कैन सी द क्रेडिट पॉलिसीज क्या है, लाइबिलिटी टू पे द ड्यूज क्या है। सो सप्लायर इज द एक्सटर्नल यूजर, देन कस्टमर्स। ठीक है, सो कस्टमर्स ऑल्सो ऑल्सो सी, कोई मैंने बड़ा प्रोडक्ट लेकर रखा है किसी कंपनी से, कि भाई क्या पोजीशन है कंपनी का, ऐसा तो नहीं है मैंने मटेरियल ले लिया और ये कंपनी डूब जाए, अब मुझे आगे प्रॉब्लम हो। गवर्नमेंट फॉर टैक्स कलेक्शन, गवर्नमेंट भी देखती है भाई इसका टैक्स कलेक्शन का क्या है। अभी एक बार उसने जीएसटी कम भर दिया, पहले ज्यादा आ रहा था, तो गवर्नमेंट के भी जो एंटीना खड़े हो जाते कि भाई क्या है, वाई टैक्स इज नॉट बिन डिपॉजिटेड करेक्टली। तो गवर्नमेंट उसका फाइनेंशियल्स देख सकती है, सो गवर्नमेंट इज अगेन अ एक्सटर्नल यूजर। सो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या के लिमिटेशंस क्या है, तो इट इग्नोर्स द नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। ठीक है, जैसे अभी कोई स्किल लेबर है, उसका स्किल है, अभी दो लोग काम कर रहे हैं शॉप फ्लोर पे, ठीक है, दोनों का सैलरी सेम है, एक का स्किल ज्यादा है, स्किल कैनॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ द अकाउंट, इट कैनॉट बी अकाउंटेड। ठीक है, किसको आपने सपोर्ट किया, किसको आपने हेल्प किया, दीज आर द नॉन मॉनेटरी थिंग्स, सो नॉन मॉनेटरी थिंग्स कैनॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, देन हिस्टोरिकल नेचर, जैसे मैंने बताया आपको एक एग्जांपल लेके मस्टरी का, हमने रिकॉर्ड किया 5 लाख रुपीज पे, आज उसकी वैल्यू क्या है, 3 लाख रुपीज हो गई। या फिर कोई मैंने लैंड खरीदा, अभी लैंड मैंने खरीदा था 10 साल पहले, उसका वैल्यू था 1 लाख रुपीज, आज वो हो गया 15 लाख रुपीज, बट आई कैन नॉट मेक दैट 1 लाख टू 15 लैक्स। ठीक है, सो इट इज शो दी हिस्टोरिकल नेचर, इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। बट अभी इसमें थोड़ा आपको समझाता हूँ, हिस्टोरिकल नेचर हम लोग बोलते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती है ना, फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं ना, उसको हम लोग रिवैल्यू करते हैं, रीस्टेट करते हैं। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, मेरा क्रेडिटर्स है, ठीक है, अभी क्रेडिटर्स जो है मेरा, तो मुझे उसको पे करना है, तो डॉलर टर्म्स में मुझे पे करना है, सपोज तो डॉलर सपोज थी 90 रुपीज थी सपोज, $100 मेरा लाइबिलिटी है, और जब मैंने परचेस किया था तो डॉलर वॉज सपोज 100 का मैंने मेटल परचेस किया था, एंड रेट वाज 90। तो कितना हो गया ये, ठीक है, मेरा लाइबिलिटी कितना है, 9,000 रुपीज, ये रुपीज है। ठीक है, $100 मेरा लाइबिलिटी था, जब परचेस किया था 90 का रेट था, तो 9,000 मेरा लाइबिलिटी है। हम्म, अब जब मैं पे करने जा रहा हूँ, अब क्या हो गया, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज किया, तो जब मैंने क्लोज किया ना 31 मार्च को, तो ये था 92 डॉलर था, 92 था। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा लाइबिलिटी जो आज भी की तारीख में खड़ा है ना, इसको 92 पे मेजर करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 9,200। और बेसिकली जो 200 रुपये है ना, ये मेरा लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सभी एसेट्स हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, जो फाइनेंशियल एसेट्स है ना, हम उसको रिवैल्यू भी करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे लिमिटेशन डिस्कस कर रहे हैं जस्ट टू एड ऑन योर नॉलेज। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग बनाएंगे 31 मार्च को, तो जो फाइनेंशियल एसेट्स है, वी आर गोइंग टू रीवैल्यू दोज एसेट्स। इग्नोर्स इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को इग्नोर करता है, बराबर। हिस्टोरिकल कॉस्ट है, इग्नोर करेगा इन्फ्लेशन को, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसिडर कर रहा है इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन कंसिडर किया, 92 का 90 से 92 हो गया, तो इट कंसिडर्स। परचेसिंग पावर ऑफ मनी को वो अकाउंट फॉर नहीं करता है, लाइक पर्सनल जजमेंट। ठीक है, सो अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन दी एस्टिमेट, बेसिकली अकाउंटिंग उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है ना, सबका अलग अलग हो सकता है, एक कंपनी का और दूसरी कंपनी का भी अलग हो सकता है। जैसे अभी यहाँ डेप्रिसिएशन मेथड की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कोई एसेट परचेज किया, मैं बोलता हूँ यार इसका लाइफ मेरे बिजनेस के हिसाब से 5 साल है, तो आई विल डेप्रिसिएट दैट एसेट इन 5 ईयर्स। जबकि वो एसेट मेरा 6-7 साल चलेगा, लेकिन माई एस्टिमेट इज वॉट, माई अकाउंटिंग एस्टिमेट इज वॉट, माई अकाउंटिंग एस्टिमेट इज वॉट, उसका लाइफ इज ओनली 5 ईयर्स। 5 years। 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 5 ye
जबकि मार्केट में उसका लाइफ ज़्यादा भी हो सकता है। सो आई विल डेप्रिसिएट दैट एसेट इन 5 years पीरियड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, ठीक है, मेरा मेरा अलग से कुछ पॉलिसी है। मेरा मेरा एस्टिमेट है, ये है कि भाई ये बंदा मुझे पैसा नहीं देगा। सो आई कैन बेस्ड ऑन माई एस्टिमेट आई कैन मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब क्या बोलते हैं अल्टरनेट पॉलिसीज। अल्टरनेट पॉलिसीज अल्टरनेट पॉलिसीज different accounting policies for the same item increase the profitability और मैनिपुलेशन। तो क्या होता है कि अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दिया तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी और एवरीथिंग विल गो चेंज, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चेंज हो जाएगा। आपका बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी यू फॉलो। जैसे एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास में स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास में एक स्टॉक पड़ा हुआ है 100 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी उसकी, ठीक है, क्वांटिटी। अब मैं इसको वैल्यू कर रहा हूँ, कौन से मेथड से वैल्यू कर रहा हूँ, फीफो मेथड से वैल्यू कर रहा हूँ, फीफो मेथड। तो उसका रेट है सपोज 10, तो मेरे कितना वैल्यू हो गया, 10,000 का वैल्यू हो गया स्टॉक का वैल्यू, जो मैं बैलेंस शीट के क्रेडिट में लिखूंगा। अब मैं क्या बोलता हूँ, नहीं आई विल चेंज माई पॉलिसी, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इस फीफो को मैंने कर दिया वेटेड एवरेज। जब वेटेड एवरेज किया तो मेरा 1000 क्वांटिटी था, और ये कितना हो गया, वेटेड एवरेज से 12 हो गया, तो इट विल बिकम 12,000। इस 12,000 से मेरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाएगा, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग एस्टिमेट 5 years था, ठीक है। अब मैं बता नहीं यार, अकाउंटिंग एस्टिमेट वाज रॉन्ग, आई विल टेक विद द अकाउंटिंग एस्टिमेट एज अ 7 years। सब कुछ चेंज हो गया मेरा। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है मेरी, अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर मैं चेंज करता हूँ, सो इट इज अ affecting my financials. So different accounting policies for the same item increase profitability of manipulation, probability of manipulation. देन रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी आप लोग का क्या रोल होगा इन सोसाइटी। तो कोर सर्विसेज में क्या आता है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, ऑडिट करना है आपको, इंटरनल ऑडिट करना है, और आपको टैक्सेशन देखना है कि बराबर डिपॉजिट किया है कि नहीं, उसके जो भी कंप्लायंस है वो किए है या नहीं, ठीक है। एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी, एडवाइजरी सर्विसेज में आपको जाना है, आपको मैनेजमेंट को एडवाइस करना है, देन फाइनेंशियल एडवाइस आपको कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट का है, इंश्योरेंस है, बिजनेस एक्सपेंशन, इन्वेस्टिगेशन फॉर फ्रॉड, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड इन फाइनेंशियल टर्म्स, कुछ भी फाइनेंशियल पे फ्रॉड हुआ है, सो दे कैन अपॉइंट यू। ब्रॉडर इम्पैक्ट, प्लेइंग ए की रोल इन दी फ्रेमिंग द फिस्कल पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी फ्रेम करने के लिए भी आपका बड़ा रोल है, बिकॉज गवर्नमेंट एनीवे आस्किंग दी आईसीए आल्सो फॉर देयर ओपिनियन बेसिकली। आपका क्या ओपिनियन है ऑन एनी फाइनेंशियल न्यू पॉलिसी। एडवाइजिंग कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को, हम लोग वी कैन एडवाइज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ड्राइविंग द नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। Thank you. So, this is a Clarity Professional Academy. We are present offline as well as online also. We have started the CA Foundation lectures, which is available on YouTube channel. The YouTube link is given below. Again, we have started the 11th and 12th commerce also. So anybody interested can take the admission. Thank you.